हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चों, जब किसी भी वायर से करंट फ्लो होता है तो दैट ड्यू टू दैट करंट मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड in the surrounding of that current carrying wire. This is called electromagnetism or magnetic effect of electric current. बच्चों, this is very important concept. So let us come to the point. The first point is the magnetic effect of current was first discovered by Oersted in 1820. ऑर्स्टेड ने बच्चों सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। ऑर्स्टेड फाउंड that a wire carrying a current was able to deflect a compass needle. ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया था बच्चों कि जब किसी भी वायर के थ्रू करंट फ्लो होता है और उस करंट करेंग वायर के सराउंडिंग में जब हम किसी भी कंपास निडल को ला करके रखते हैं बच्चों, तो दैट कंपास निडल इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, दैट कंपास निडल इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड. So why the compass needle is getting deflected? Due to the interaction between the current carrying wire and the compass needle. So बच्चों, the current carrying conductor also behaves like magnet, and the compass needle itself is a magnet, small magnet. So when there will be two magnets, if they will be near to each other, so suppose this is north south, if there is another magnet also, or maybe current carrying wire, maybe this is a wire AB and the current is flowing from B to A, then this magnet, this is compass needle, we can say. So what will happen to this compass needle? Let us call this one north south we are calling. So इसके पोल्स को भी बच्चों आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉर्थ साउथ, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यह होगा. ठीक है. सो अगर अपने पास कोई कंपास निडल है और किसी करंट करेंग वायर के सराउंडिंग में अगर उस कंपास निडल को ले जाते हैं बच्चों, तो यह जो कंपास निडल है दिस विल डिफ्लेक्ट, एंड दिस शोज दैट दिस करंट करेंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. सो कंपास निडल इज अ टाइनी मैग्नेट विच कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय मैग्नेटिक फील्ड. बच्चों, कंपास निडल जो है वह भी एक मैग्नेट है, और बच्चों किसी भी मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए जो दूसरे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, दैट विल ऑल्सो बी मैग्नेट ओनली. सो व्हेन वी आर bringing compass needle close to a current carrying wire, that compass needle is getting deflected. Why it is getting deflected? Because this current carrying wire also behaves like magnet. So this is producing magnetic field. This is also behaving like electromagnet or magnet, and that's why due to this magnetic field this compass needle is getting deflected. बच्चों, कंपास निडल में या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है. देयर में बी टू पॉसिबिलिटी, इधर कंपास निडल में बी अट्रैक्टेड और इट में बी रिपेल्ड आउट. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, इसको ऑब्जर्व करेंगे. ऑर्स्टेड डिस्कवरी अराउंड अ करंट करेंग कंडक्टर देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू द करंट. बच्चों, अगर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ड्यू टू दैट करंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड at what angle? At 90 degree angle, at right angle to the current. So ऐसा समझिए बच्चों कि यह एक वायर है, this is AB, current is flowing from B to A. Then how to decide the direction of magnetic field surrounding to this current carrying conductor? बच्चों, we put the thumb of our right hand in the direction of current, and then we curl the remaining fingers of our right hand. So the direction in which the fingers are getting curled, that is giving the direction of magnetic field. So for this conductor AB, whatever we are representing here, the current is like this, so the magnetic field will be in this direction. This is how the magnetic field will be. इसके बारे में हमने बच्चों पहले भी बात किया था
So if we have current in the opposite direction, their magnetic field will be, you can observe, this will be in the clockwise direction. This is anti-clockwise, this is clockwise. So here in this first picture bachcho, we have this battery plus minus, this is connected to this wire, and here we have a compass, freely suspended magnet, this is north pole, this is south pole. So when the current is flowing through this wire, through this battery we are providing the current, this north and south pole of this freely suspended magnet is getting deflected. So it is getting attracted, this north is getting attracted towards the wire. In the next diagram you can see bachcho, in the figure B, the supply voltage polarity is changed. Now this side plus, this side minus, so the direction of current is reversing, the direction of current is opposite. So in this figure bachcho, the direction of current is given like this is plus, this is minus, so current should be in this direction. So it is current should flow from positive to negative, right? So this should be the direction of current here, and positive to negative, so current should be flowing in this direction. Okay, so whatever the earlier arrow it was marked, we need to correct that. So this plus is going like this, and this plus current is going like this. So we are observing, for this case, this is getting attracted towards this current carrying wire, and in the second case bachcho, this north pole is getting repelled from this current carrying conductor. So there is two possibility. When the current is flowing in this direction, you see this is north pole, this is south pole, so this is getting repelled. And you see at the same time, when the direction of current is reversing, what is happening, you can see, so this is getting deflected in this direction, right? So reversing the current reverses the magnetic field direction, reversing the current reverses the direction of magnetic field. सर आई नीड, सर यहाँ पर एक बार और एक्सप्लेन करिए इस चीज़ को, यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हुई। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब इस वायर में करंट इस तरह से फ्लो होगा, यू कैन सी दिस पोल, नॉर्थ पोल इज गेटिंग रिपेल्ड, यह इधर जा रहा है तो यह इधर शिफ्ट होगा। अच्छा, जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो जो ऊपर की तरफ जा रहा था नॉर्थ, अब किधर जाएगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। दिस विल कम हियर एंड साउथ विल गो इन द अप। सो उसी तरह से यह नॉर्थ नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, और साउथ जो बच्चों पहले इधर आ रहा था अब इधर शिफ्ट हो गया। इस डायग्राम को मैं वापस आपके लिए बना रहा हूँ, एक यहाँ पर सर्ट जो है न्यू स्लाइड लेकर के आपको मैं यहाँ पर बच्चों इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि वायर यह था, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर अपने पास एक मैग्नेट था, कंपास निडल जिसको बोल रहे हैं बच्चों। वी विल ड्रॉ दिस डायग्राम प्रॉपरली। सो दिस इज करंट करिंग वायर, और यहाँ पर लेट अस यूज दिस कलर। सो ये जो सस्पेंडेड मैग्नेट है बच्चों, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डायग्राम जैसा है वैसा ही बनाए, आप समझिए। दिस इज अ करंट करिंग वायर। So what is observation when the, suppose if the current is flowing like this, so this north pole is getting repelled, right? ये north pole इस तरफ shift हो रहा है and south is getting shifted like this. अच्छा, सेकंड केस में क्या हुआ बच्चों, जब हमने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, when the direction of current is getting reverse, यहाँ पर करंट रिवर्स हुआ। so अब क्या होगा, पहले इसको आप प्लॉट कर लीजिए। दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल इज रिक्वायर्ड हियर, पहले आप इसको प्लॉट कर लीजिए। सो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ पोल। सो नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जो नॉर्थ पहले रिपेल हो रहा था बच्चों, दैट नॉर्थ विल बी नाउ अट्रैक्टेड। सो दिस विल बी अट्रैक्टेड, अब ये अट्रैक्शन होगा इस तरफ, और यह जो इस तरफ आ रहा था बच्चों, नाउ इट विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन। सो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यहाँ पर, और न्यू ओरिएंटेशन जो इस मैग्नेट का होगा बच्चों, दिस विल नॉट बी द न्यू ओरिएंटेशन। सो न्यू ओरिएंटेशन कैसा होगा, सो इट विल बी लाइक दिस। आई एम ड्राइंग दैट पिक्चर just for understanding it was. So new orientation will look like this. So this is current carrying wire. So now the magnet will be placed in the new position.
So this is how you, and current is also not required to plot because we can understand the arrow is indicating the direction of current. So यहाँ पर ये जो मैग्नेट है बच्चों इस तरह से रीओरिएंट हो जाएगा एंड दिस विल बी नॉर्थ पोल, दिस विल बी साउथ पोल. सो नॉर्थ पोल पर बच्चों इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, इस तरफ मूव कर रहा होगा नॉर्थ पोल, एंड साउथ पोल विल बी मूविंग लाइक दिस. So this green color, this line is representing the current carrying wire. So बच्चों this is how we understand, जब भी किसी वायर के थ्रू करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो इस तरह से मैग्नेटिक निडल या कंपास निडल जो है वह डिफ्लेक्ट होगा. अर्लियर अगर हम इस फील्ड को प्लॉट करें बच्चों, इफ यू प्लॉट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर, तो दिस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, या इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहाँ पर बच्चों साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो अर्लियर जब करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, और जब करंट का डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दिया, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. सो यह जो बच्चों एक्सप्लेनेशन है यहाँ से हमें समझ में आना चाहिए. दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस, हाउ द कंपास निडल डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्सेस. वाई दिस इज हैपनिंग, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने मन में अराइज करें कि सर ऐसा क्यों हुआ, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से कंपास निडल अपोजिट डायरेक्शन में क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसके बारे में बच्चों आप यही कहेंगे कि जो करंट करिंग कंडक्टर है, मैंने आपको बताया था कि अगर वायर में इस तरह से करंट फ्लो होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा बच्चों. पुट योर थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करिंग कंडक्टर और एरो के डायरेक्शन में, अब बाकी फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे तो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर बच्चों अगर करंट रिवर्स होता है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होगा, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब रिवर्स होगा बच्चों, सो फॉर दिस केस हाउ द लूप विल बी, so loop will be like vertical loop. Okay, so this will be vertical loop. So for this case this will be in the clockwise direction. आप it is better horizontal way में, अगर आपको यहाँ पर चीज़ों को क्लियर नहीं हो रही है तो you can understand from the first figure that I generally used to say all the time कि अगर वायर इस तरह से प्लेस्ड है बच्चों, करंट ऐसे है, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा. दिस इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, दिस इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, इस तरह से होगा बच्चों. और अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा. सो नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिवर्स. ठीक है. सो व्हेन वी रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ वायर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of this current carrying wire also reverses, and therefore the deflection to this compass needle is also in two different ways in the two cases. So यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेते बच्चों, when the direction of current flowing through the wire reverses the direction of magnetic field, the direction of magnetic field also reverses, which causes the change in the deflection, which causes the change in the deflection of compass needle. ठीक है बच्चों. So next to this, since a current carrying wire was able to deflect a compass needle, it was concluded that a current flowing in a wire always gives rise to magnetic field around it. बच्चों जैसा हमने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो होगा और उसके सराउंडिंग में कंपास निडल को लेकर के आएंगे तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट होगा. सो दिस शोज दैट कि जो करंट करिंग वायर है वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है.
So this experiment was done by Oersted. First of all, Oersted only did this experiment and he only observed the magnetic effect of electric current. That is also known as electromagnetism. Now, the importance of magnetic effect of current lies in the fact that it gives rise to mechanical forces. जो यहाँ पर एक और पॉइंट एड अप होगा बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, वो यह कि ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट it also brings the concept of mechanical force. कहने का क्या मतलब है, अगर सिंपल शब्दों में समझें बच्चों, तो सिंपल शब्द में समझने का जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है बच्चों वो यह है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बच्चों जो है फोर्सेस लगेगा, मैकेनिकल फोर्सेस लगेगा. अगर कोई कंपास निडल है तो कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, मे बी क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, किसी दो डायरेक्शन में ही कंपास निडल करंट करिंग वायर के सराउंडिंग में डिफ्लेक्ट हो सकता है. तो जो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आया बच्चों, दैट इज ड्यू टू द फोर्स एंड दैट फोर्स इज कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द करंट करिंग वायर. सो करंट करिंग वायर ने पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बच्चों ये जो कंपास निडल है इसके ऊपर फोर्स लगा और यह कंपास निडल डिफ्लेक्ट हुआ. यहाँ पर एक और पिक्चर है अपने पास बच्चों, इसमें आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को थ्रू दिस स्विच यू आर कनेक्टिंग टू दिस वायर ए बी, ये जो यहाँ पर थिक है बच्चों, या थिक ब्लैक कलर का ये जो थिक लाइन है, दिस इज वायर. This red dot is representing current flowing in the upward direction, and here we have compass to detect the direction of magnetic field. So this is a positive terminal of the battery connected to this end, A end, or negative terminal of the battery is connected to the B terminal of this current of this wire AB. So now what will happen as per the thumb rule बच्चों, right hand thumb rule, आप अपने right hand के thumb को करंट के डायरेक्शन में बच्चों प्लेस करेंगे, तो बाकी फिंगर्स को जब आप कर्ल करेंगे इन ऑर्डर टू होल्ड दैट वायर ए बी by pointing your right hand thumb in the direction of current, then the remaining finger of right hand will be rotated or curled in anti-clockwise direction. So we have here concentric loops. यहाँ पर बहुत सारे concentric loops है बच्चों, circular loops, and they all have same sense, that is anti-clockwise sense. So they are representing the magnetic field lines surrounding to this wire AB. So when you will place the compass needle here, this will show this direction only. So this direction is the direction of the magnetic field surrounding to this current carrying wire. So this picture should be very clear बच्चों, this diagram should be very clear. This cardboard sheet, what I mean to say, अगर आप बच्चों इसको एनालाइज करना चाहें 3D में, तो आप समझिए कि जो वायर ए बी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है और उस वायर के ही एक्सिस के अलोंग बच्चों आप एक हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड या कार्ड शीट को कंसीडर करिए. तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो आपको कहाँ पर मिल रहा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिल रहा होगा, और जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों वो वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि करंट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. मीन्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बच्चों क्या है, 90 डिग्री एंगल पर है. here the direction between the current flowing in the wire, between the current that is flowing in the wire, current in the wire, the direction between the current in the wire and magnetic field is 90 degree, or you can say perpendicular. So this is how we understand बच्चों. So moving forward, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. The electric motor, electric generator, telephone, radio all utilize the magnetic effect of current. The magnetic effect of current also called electromagnetism, which means electricity produces magnetism.
So these 2 points are again very very important बच्चों, important note कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर या टेलीफोन या रेडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज होता है। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं बच्चों, इसका सिंपल मतलब यह होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी होगा बच्चों, so that electricity will produce magnetism. So electricity produces magnetism. Electricity produces magnetism, and that is called as a magnetic effect of current or electromagnetism. That is called as electromagnetism. Okay, so now we have another concept बच्चों, experiment to demonstrate the magnetic effect of current, that we will discuss definitely in the next video. So in this video बच्चों this much only, so please go through the video, watch it properly and make a running notes. So thank you, see you in the next video.